Modi government has announced implementation of the Citizenship Amendment Act. It was an integral part of the BJP's 2019 manifesto. This will grant citizenship to the persecuted minorities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. The bill was passed, remember, in 2019 amidst protests, but now we are hearing through our sources that the notification has been issued for CAA. Big news coming in on the broadcast. Mahima Kataria is joining us for more on this story. Mahima, is it now official? Has CAA been announced? Has it been officially notified? Okay, I think we've lost that connection with Mahima there, but these are, of course, the big developments we are tracking for you. The Modi government announcing implementation of Citizenship Amendment Act. Remember, this was something being speculated through the evening when we had heard that there could be a big news coming in from the government this evening. Remember, this was something that, of course, had been said is to be crucial for the BJP's manifesto. They've done it obviously before the Lok Sabha elections. In fact, we have the first reaction coming into this. Suvendu Adhikari, senior leader of the party from West Bengal, tweeting saying, "This is Modi ki guarantee. I wholeheartedly thank Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Home Minister Amit Shah for notifying the rules of the Citizenship Amendment Act." The CA, remember, of course, has now been officially notified. In fact, Suvendu Adhikari has said the long-standing demand of the Matua community will now be fulfilled. They will get citizenship. No one can deny them their rights, not even Mamata Banerjee. I would like to extend my best wishes in regards to the Matua community and the All India Matua Mahasangha. So obviously a bold pitch as well by Suvendu Adhikari for the community, which of course is part of West Bengal. Rakesh Singh is joining us for more on this story. Rakesh, big news coming in with the official notification now out. What will be the ramifications, Rakesh, this will have on the upcoming Lok Sabha polls? देखिए, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी और 3 देशों की बात मैं कर रहा हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इससे 31 दिसंबर 2014 से पहले जो कि यहां पर आए हुए हैं, उनको जो है एक वेब पोर्टल जारी किया गया, उस पर उनको भरना पड़ेगा। और ये आपको स्पष्ट उदय ये करना जरूरी है कि जिस तरह से आपने देखी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वो देखिए इस मसले को लेकर राजनीति की जाएगी, लेकिन अपने ITV नेटवर्क के दर्शकों को बताना चाहूँगा, किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाएगी। ये पहला चीज़ है। और CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पूरे देश में ये लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जो नागरिकता देने के जो नियम है वो तय किए गए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र लोगों को जाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपने इस पे प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं वो सही दिशा में नहीं है। तो राजनीति इस तरह के मसलों पर नहीं किया जाना चाहिए और लोगों से भेदभाव करने वाली ये कानून नहीं है। और CAA को लेकर लंबे समय से लगातार अपेक्षा की जा रही थी। अगर आखिरकार आपने सुना था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि 2024 से आम चुनाव से पहले जो है आएगा, तो इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश और पाकिस्तान आए शरणार्थी को लाभ होगा और गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। तो 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी उदय, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी जो हैं। बिल्कुल, और इसकी चर्चा पार्लियामेंट में भी हुई थी। मगर बड़ा सवाल यह है राकेश, ये बहुत बड़ा कदम है, चुनाव से ठीक पहले हुआ है, चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि चुनावी दृष्टिकोण से हमें ये देखना होगा। देखिए, जयराम सुवेंदु अधिकारी ने जिक्र कर दिया है, सुवेंदु अधिकारी ने कहा है मटुआ समाज के लिए बहुत फायदा होगा। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का ट्वीट, उन्होंने कहा कि ये चुनाव के लिए ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, तो इस पे राजनीति होगी उदय। लगातार मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ममता बनर्जी का बयान देखिए, अब जयराम रमेश का बयान देखिए, तो इस पर राजनीति होगी। जी, निंदा तो हो रही है, मगर बीजेपी को फायदा कितना मिलेगा इससे? देखिए, बीजेपी के नेताओं से बातचीत कर रहा था, उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो है मेरे घोषणा पत्र में है, इसे लागू करना मेरा काम है और ये मौका देश की जनता ने दिया है तो मैं लागू करूंगा। लेकिन इसको लेकर फायदा, अगर विपक्ष इसको मसला बनाने की कोशिश करेगा तो ये ध्रुवीकरण होगा उदय, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप मुद्दा बनाइएगा
तो ये जो है इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। राकेश कुमार सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.